Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the paper analysis of English literature paper for class 12 ISC. This is the previous year paper of 2025. ओके जिसका काउंसिल ने आंसर की अलॉन्ग विद द पेपर एनालिसिस उन्होंने इशू किया है, जिसमें वो बताते हैं कि व्हाट मिस्टेक्स वर देयर दैट योर सीनियर्स हैव डन एंड यू शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक्स दोज मिस्टेक्स. ठीक, तो फर्स्ट इज सेक्शन ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले एमसीक्यूज है. एमसीक्यूज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड अ लॉट. उसके बाद फिर जब आप लॉन्गर क्वेश्चंस में जाते हो तब काउंसिल मेन आपको बताता है कि हाँ दीज आर द मिस्टेक्स, ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं, ऐसे नहीं लिखने होते हैं. ओके, तो द स्टेटमेंट सेज दैट चूज द करेक्ट ऑप्शंस. First one says that how does Ross describe Macduff to Lady Macduff in Act 4, Scene 2 of the play Macbeth? So these are the four options given. The first option is the answer is a noble, wise and judicious. ये जो पेपर ही हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जब आंसर की इसकी निकाली गई थी. मे बी 1 or 2 क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द आंसर की, बिकॉज ये काउंसिल द्वारा दी गई ऑफिशियल आंसर की है. ओके, and this is very important for this year people who are going to give the exam in just February. The second question says, in his soliloquy in Act 3 Scene 1 of the play, this is the monologue. ठीक, Macbeth, which one of the following does Macbeth refer to as a reason for fearing Banquo? वो बोल रहा है कि बैंको से फियर करने के उसने कौन कौन से रीजंस स्टेट किए थे अपने खुद के मोनोलॉग में. तो बैंको इज क्लोज टू लेडी मैकबेथ, नो. बैंको इज रॉयल इन नेचर, येस. बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बिकम किंग्स, येस. एंड बैंको इज अ पुअर एडवाइजर, नो. तो आंसर इज क्यू एंड आर, दैट इज आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Knots had all spent where our desire is got without content. What does this quote by Lady Macbeth in Act 3 Scene 2 of the play Macbeth reveal about her mental state? तो ये उसके बारे में क्या बताती है? तो उसके बारे में बताती है that she realizes the futility of power, the uselessness of the power that she has. उन्होंने अपनी सारी डिज़ायर्स को अटेन कर लिया, उन्हें किनशिप भी मिल गई है, बट उसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बिकम द किंग्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्ट 5 Scene 5 of the play Macbeth. What is Macbeth's first reaction when the messenger informs him that the wood began to move? तो उस पे उसका पहला रिएक्शन क्या था? He disbelieves the messenger and calls him a liar. वो एक बार में उसका बिलीव ही नहीं करता है, वो उसको लायर कंसिडर करता है. Why did Charu Sashi smash Tarapada's flute in the short story Atithi? वो ऐसा क्यों किया उसने? Because she was overcome with jealousy and anger. ठीक, what does the ever ticking clock in the story, short story There Will Come Soft Rain symbolize? तो इसका जो आंसर है, ये दोनों आंसर्स मिस्टेकनली लिख दिए गए हैं काउंसिल के, क्योंकि दोनों ऑब्वियसली सेम है तो ये नहीं होगा. इसकी जो आंसर की है सेम ही डॉक्यूमेंट में, आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट. तो आंसर इज द टाइम इज ऑल पावरफुल एंड एवर प्रेजेंट. ओके, तो प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर है ये. 6 का इट विल बी सी, टाइम इज ऑल पावरफुल एंड एवर प्रेजेंट. Then read the following statements and the medicine bag and choose the correct option. Tomorrow, he said, when you come home, it will be time to give you the medicine bag. तो उसके बाद statement 2, I felt a hard squeeze from my heart where my heart is supposed to be and was scared but answered, okay grandpa. तो statement 1 is the reason of statement 2. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 1 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the best following best describes the Beethoven's father's attitude? तो we thought कि the answer would be overbearing, but actually the answer is he drove Beethoven to perfection. हमें ऐसे लगा था because overbearing in the sense कि उनसे थोड़ा सा अच्छे से बिहेव ना करना, बट यहाँ पर actually he wanted him to go to perfection. Next is
In the poem Small Towns and Rivers, what is a river compared to? So it is a torrent of grief. Then in the poem Tithonus, what does Tennyson illustrate through the image of wood's decay and fall? Man come and tills the field and lies beneath. That is the natural cycle of life and death. ठीक, तो उसके ये सारे आंसर्स आपको दिए गए हैं. नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर, जो आपसे सीधे सीधे देखो इसमें मोस्टली उन्होंने सब जगह, बस एक ही थर्ड वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला था दैट दे अपियर टू बी कन्फ्यूज एंड कुड नॉट करेक्टली इंटरप्रेट लेडी मैकबेथ्स स्टेट ऑफ माइंड एंड एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन. सो यू हैव टू जस्ट इतना, बस इतना चीज़ दिमाग में रखना. सी ये जो सजेशंस हैं दिस वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना कि वेन एवर अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, और कभी भी आप मैकबेथ पढ़ रहे होते हो ना, इतना समझो कि आपको ये भी उसमें समझना है कि ये जो ऐसा वो कर रही है क्यों कर रही है, जो ऐसा कह रही है वो क्यों कह रही है. वी वर वेरी स्मॉल व्हेन आवर प्रिंसिपल यूज्ड टू टेल अस, जब हम लोग लिटरेचर पढ़ते थे, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड, 10 साल पहले भी ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम पर भी ये चीज़ बोली गई थी कि 10 years back in the sense कि when we gave our class 12, तो हम लोग की प्रिंसिपल हमें बताती थी कि लिटरेचर का एक रूल हमेशा याद रखो, वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, इफ़ नॉट नाउ देन वेन, इफ़ नॉट हेयर देन वेयर, इफ़ येस देन वाई, इफ़ नो देन वाई. ठीक, तो ये हमेशा आपको याद रखना है. वेन एवर यू आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर रीडिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर राइटिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बाय योर सेल्फ, और समवन एल्स इज एक्सप्लेनिंग यू, और यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन एल्स. इन सारे केसेस में आपको ये याद रखना है कि आपको यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद द रीजन्स की वाई दिस इज हैपनिंग. ओके, नेक्स्ट इज in we have to complete the sentences by providing the reason for each in brief. Do not write the question, you just have to start the answer from here. तो इसकी जो answers हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. we'll move towards that also. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, इन एक्ट 3 सीन 5 ऑफ द प्ले मैकबेथ, हिकेत इज एंग्री विद द 3 विचेस बिकॉज, तो इसका तो आंसर हम लोग को पता था कि उन्होंने कभी भी इसको इंक्लूड नहीं किया था. दे हैड ट्रेडेड एंड ट्रैफिक्ड विद मैकबेथ इन रिडल्स एंड अफेयर्स ऑफ डेथ विदाउट हर इन्वॉल्वमेंट. हिकेत को बिना पूछे ही इन लोगों ने सब मतलब उसको ये सारी प्रोफेसीज कर दी थी. She was not called to bear her part. Macbeth was not a natural associate of evil. They had traded with Macbeth who loved his own ends. ठीक, तो ये these were the reasons. ये जो स्लैश बना है मतलब any of the reason can be taken. Then act 4 scene 3 of the play, Macbeth, Malcolm is suspicious of Macduff's intentions. तो यहाँ पर उसके रीजंस पूछे गए कि वाई इज़ ही सो सस्पिशियस ऑफ मैकडव्स इंटेंशंस. ही हैज़ लेफ्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बिहाइंड इन स्कॉटलैंड. उसने अपने वाइफ और चिल्ड्रन को स्कॉटलैंड में छोड़ दिया था इन द एश्योरेंस दैट दे वुड बी सिक्योर. मैकडफ हैड लव्ड मैकबेथ वेल इन द पास्ट. कोई भी रीज़न हो सकता है. मैकबेथ हैड नॉट हार्म्ड हिम येट. मैकडफ वुड यूज मैल्कम एज अ बेट टू गेट मैकबेथ्स फेवर. ठीक, तो these were the reasons, or any of these reasons can be taken. Then act 4 scene 3 of the play Macbeth, Malcolm is suspicious of Macduff's intentions because, so इसमें पूछा गया है कि Malcolm is suspicious of Macduff's intentions. Why? Reasons have been asked. Wait. ठीक, the third one, Lady Macbeth is evidently suffering from a mental disease and not a bodily one. He lacks the skill to cure her. Her disease is spiritual or psychological. ठीक है, ये कुछ इसमें इन्होंने यही वाला सेम क्वेश्चन उठा करके, देयर आर सो मैनी एरर्स. यहाँ पर लेडी मैकबेथ वाला क्वेश्चन पूछा गया है. फिर आई कांट हेल्प, this is council's issued document जिसमें so many mistakes are there. Okay, act 4 scene 1 of the play Macbeth. Macbeth is angry
at the witches when they show him the vision of the line of kings. तो उसमें पूछा गया कि ऐसा क्यों, मतलब why is it so, why is Macbeth so angry? He feels that all his efforts to secure his position have been in vain. उसने फ्लियांस को भी किल करने की कोशिश की थी. The assurance of the witches were false. His efforts to eliminate Banquo have been in vain because eventually तो Banquo नहीं था ना, उसका बेटा था. It confirms his worst fear. His descendants will not be kings. Any of these reasons can be taken up. ठीक है. उसके बाद है, in the short story Medicine Bag, Martin and his family feel guilty when grandpa traveled all alone to their home. तो उसमें पूछा गया कि क्या रीज़न था इसका. तो इसमें दिया हुआ है that they were his only living descendants and had not kept much contact with him. They did not know he had grown so old and infirm. They had not done their duty or neglected them. तो इसीलिए उनको थोड़ा सा गिल्टी या फिर बुरा लग रहा था. Okay, next is in the story Cookie Lady. When Bubber informs Mrs. Drew that it would be his last visit, she is stunned. तो what is the reason behind being so stunned? तो इसमें लिखा हुआ है that she would lose the opportunity to renew her youth through Bubber. In his absence, she would grow old and wrinkled. Okay, next question. In the short story Atithi, Motilal Babu is initially reluctant to marry his daughter to Tarapada. So why was this? मतलब he was not willing to marry his daughter to Tarapada. Why? The reason was being asked. So he did not know anything about Tarapada's family. He was unsure as Charu Sashi was his only daughter, wanted to marry her well. Tarapada was a vagabond जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं. ठीक. In the poem Tithonus terms his immortality cruel. Why? Reason has been asked कि क्यों वो अपनी mortality को cruel बताता है immortality को. He was old and lacked the vitality to enjoy his immortality that had not been given him the joy he had dreamt of. Aurora had remained ever young, while he, though immortal, he had grown old and frail. He was old and frail. पूरी पोएम में आपने यही सुना होगा, यही वो बोलता रहता है. In the poem Beethoven, the musicians made fun of Beethoven's madness. Why? The reason is being asked कि वो जो musicians थे वो उसका fun क्यों करते थे? Because they did not understand his passion and his geniusness. To them, he was only a deaf man with his foibles. They were insensitive, jealous of his accomplishments. Okay, then next question, that in the poem Telephone Conversation, the speaker on the phone makes self-confession. The reason, he felt that his being dark would be an impediment in his search of accommodation. मतलब वो उसके लिए एक रुकावट जैसा था. From the white lady, he felt guilty about his dark skin. Probably he had faced rejection in the past. He had probably been made to feel his dark skin was a heinous crime. He did not want to take trouble of visiting the place. So इसीलिए वो वहाँ पर गया ही नहीं, because उसे पता था कि उसकी डार्क जो स्किन है वो उसके लिए ट्रबल का तरीके से काम करेगी. ठीक है. Now we will understand the comments of the examiners from here. सारे these were okay. देखो, कुछ candidates were unable. Everywhere they have answered these questions well. Some have given vague and unfocused answers. Many confusing Banquo's descendants with Macbeth's descendants. ठीक है. तो somewhere तो literature is not like conceptually आपको उसको बहुत बार, जैसे मूवीज़ आप कई बार देखते हो आपको याद हो जाती हैं, वैसे ही मैकबेथ एंड जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्टोरी की, पोइट्री की, वो सब आपको कई बार पढ़नी पड़ती है. कुकी लेडी के लिए बताया गया है दैट द आंसर्स रिवील दैट इवन द स्टूडेंट्स गॉट द आइडिया, द एक्सप्रेशन वॉज पुअर. मतलब आप उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो अच्छी चीज़ नहीं थी वहाँ पे. द रिस्पॉन्सेज डिड नॉट फोकस ऑन बबर्स एब्सेंट मेंट टू मिसेस ड्रू.
Many candidates wrote that she did not want to be alone. तो these were the reasons जो दिए गए थे. ठीक है, majority of the candidates were not able to understand the question because उनको reluctant का meaning ही नहीं समझ में आ रहा था. फिर next question, Beethoven. Beethoven says that most of the candidates most of the candidates were unable to answer this question properly as they could not identify the actual reason for the mockery. The candidates just wrote that the musician mocked him because he was deaf. Their inability to understand Beethoven's geniusness and his quest for perfection was not highlighted. तो इसीलिए students have left, मतलब somewhere marks have been deducted. तो देखो आपको ये सारी चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है. एक मिनट. The last one, most candidates did not appear to understand the context of self-confession or the guilt of being dark-skinned, hence he could not adequately answer the question. तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है, आपको उस चीज़ को एनालाइज करना है कि उस क्वेश्चन के बीच का जो बिहाइंड का जो रीज़न है वो क्या है. ओके, नाउ वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस. सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि हाउ डज लेडी मैकडफ रिस्पॉन्ड टू हर हस्बैंड सडन डिपार्चर इन एक्ट 4 सीन 3. तो उस पर वो रिएक्ट कैसे करती है. देखो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो आई विल नॉट बी रीडिंग आउट वन लाइन ऑफ दिस PDF आई विल बी सेंडिंग यू. नेक्स्ट जब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन सारे क्वेश्चंस को उसमें इंक्लूड करेंगे. ओके, बिकॉज इट मे हैपन कि ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर लेडी मैकडफ के बारे में पूछा गया तो इस बार ऐसा नहीं कि पूछा ही नहीं जाएगा. सो ऑब्वियसली वी विल टेक दीज क्वेश्चंस एज वेल. सो व्हाट डज हर रिस्पॉन्स सजेस्ट अबाउट हर नेचर. देन यू हैव टू, यहाँ पर हम लोग एनालिसिस पढ़ें तो वी विल ओनली बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ द पेपर. लेडी मैकडफ एंड एक्विजिशंस एंड एस्पेक्ट ऑफ हर नेचर, ये दोनों चीज़ों पर आपको फोकस करना है व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर. देखो एक चीज़ आई विल बी टेलिंग यू, इन सारी चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है कि इट हैपन्स कि जब भी आप जो भी क्वेश्चंस करते हो या फिर जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, नो डाउट आप उसे पढ़ रहे हो, आपको वो चीज़ समझ में आ जा रही है, आपने उसकी थीम भी पढ़ ली, एनालिसिस भी पढ़ लिया, कैरेक्टराइजेशन भी कर लिया. अनटिल एंड अनलेस यू मेक योर ओन नोट्स, जब तक आप उन इम्पॉर्टेंट लाइन्स को, चीज़ों को रीड नहीं करोगे, अपने पास लिखोगे नहीं, यहाँ पे भी मैं पढ़ा दूंगी आपको, बट स्टिल अनटिल एंड अनलेस यू विल राइट इट विद यू, इट विल नॉट, यू आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी नहीं. ओके, जैसे यहाँ पर एस्पेक्ट ऑफ हर नेचर पूछा गया. मेक अ नोट ऑफ लेडी मैकडफ्स कैरेक्टराइजेशन. एक्ट 4 में ये चीज़ थी, एक्ट 3 में ये चीज़ थी. तो जहाँ जहाँ पर यू फाइंड इट लेडी मैकबेथ का कैरेक्टराइजेशन, मैकबेथ का, मैकडफ का, मैल्कम का, जितने सबका आपको कैरेक्टराइजेशंस मिल रहे हैं, थीम मिल रही है, वो सब चीज़ें अपने पास नोट डाउन करके लिख करके रखो. ओके, तो क्वेश्चन एज बीन आस्क्ड कि उसका जो मैकडफ का जो रिस्पॉन्ड था अपने हस्बैंड की सडन डिपार्चर पर वो क्या था एंड उससे आपको उसके नेचर के बारे में क्या पता चलता है. ठीक है, तो दिस वी विल बी डूइंग हेयर. अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ द स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, आपको ये पता है कि हाँ ये चीज़ें आपको लिखनी है. हम लोग सिर्फ उनका जो एनालिसिस है अभी वो ज़्यादा ज़रूरी कि ये मिस्टेक्स आप मत करो, हम वो पढ़ेंगे. तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट सेवरल कैंडिडेट्स ऑफर्ड इनकरेक्ट एनालिसिस of her character, revealing a limited understanding of her character. मतलब that it is being mentioned कि person, मतलब people were not able to understand उसके character के बारे में जो इसमें दिया हुआ है. They failed to convey that Lady Macduff's accusations against her husband stemmed from her ignorance of political events. ये भी मतलब दिस पॉइंट कैन बी ऑल्सो मैंशन कि उसको नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है. एंड हर सेंस ऑफ बीइंग लेफ्ट bereft and unprotected, तो उस चीज़ से भी she was annoyed. Her words were often repeated without context and her vulnerability and inability to grasp her husband's patriotism were also overlooked. उसे सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ दिख रही थी लेडी मैकडफ को. ये नहीं दिख रहा था कि द हस्बैंड्स पेट्रियोटिज्म नेचर की समवेयर शी वुड सपोर्ट हर, वो चीज़ नहीं दिखी.
ये नहीं देखा कि हाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस बाहर क्या है, वो भी नहीं पता था उसे. तो दीज थिंग्स कुड हैव बीन मेंशन्ड, दैट वाज नॉट रिटन बाय द पीपल, by your seniors. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what secrets did Lady Macbeth reveal as she walks in her sleep? In Act 5 Scene 1, very important scene, that is the sleepwalking scene. ठीक. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब इसमें पूछा गया कि जो स्लीप वॉकिंग सीन था उसमें क्या क्या बातें बताई गई थी, उसने क्या क्या सीक्रेट्स रिवील किए थे. what changes do you notice in her from the banquet scene in Act 3? What secrets Lady Macbeth reveal in Act 5? And फिर वही सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया. Utterances in sleepwalking, क्या क्या उसने बोला. And her conduct in the banquet scene and sleepwalking, दोनों में क्या डिफरेंस था. वहाँ where she was मतलब strong, and here जहाँ पर she herself is very weak in terms of her mental ability. ठीक है, mental strength I should say. तो many candidates could not recall कि लेडी मैकबेथ की utterances क्या थे, उसने क्या बोला था. स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू लर्न दिस. तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ें हर जगह की याद रखनी है. whom they referred to focusing instead of her actions. The secrets she revealed were not discussed. Her behavior in the sleepwalking scene was not contrasted with that of the banquet scene. साफ साफ पूछा गया है कि banquet scene में उसका नेचर कैसा था, यहाँ पर कैसा था, आपको दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखाना है. It was not done. Where she appeared composed and assertive, she was firm. वो मैकबेथ को संभाल रही थी, वो खुद बहुत स्ट्रांग थी बैंक्वेट सीन में. द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ब्रोकन, फ्राइटेंड, रिमोर्सफुल वुमन वाज लार्जली ओवरलुक्ड. ओके, तो दीज पॉइंट्स यू आर सपोज टू मेंशन. जब भी आपसे अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें आपको नहीं, मतलब काउंसिल आपसे क्या पूछ रहा है. ठीक है, आपको उसके व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स फ्रॉम यू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक मैल्कम हैज़ अ किंगली क्वालिटीज दैट मैकबेथ लैक्स? इनका डिफरेंस तो ऑब्वियसली बोला ही था कि पूछेंगे, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो. ओके, एंड जस्टिफाई योर आंसर इन 200 to 250 वर्ड्स. फिर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट एबल टू were confused between Malcolm and Macbeth, writing about Macbeth's tyranny and crimes instead of Malcolm's kingly qualities. मतलब यहाँ पर आपको Malcolm को highlight करना था. People have highlighted Macbeth. Candidates who did focus on Malcolm failed to support their points with textual evidence. Text reference is very important. आज से जिस दिन से यू आर सीइंग दिस वीडियो हेयर, इफ़ यू आर सीइंग इट टुडे, वेल एंड गुड. आज से टेक्स्ट बुक्स उठाओ और उसमें मार्क करना शुरू करो. आई शुड टेल यू, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसमें देखोगे लिटरेचर, इवन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ होल में भी आपको 100 मार्क्स मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, ओनली यू हैव टू राइट अ हाई ऑर्डर आंसर. ठीक, तो टेक्सचुअल एविडेंसेस ढूंढ के अपने पास नोट डाउन करो हर चीज़ के लिए. वाइल सम मेयरली डिस्क्राइब द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मैल्कम एंड मैकडफ विदाउट एनी एनालिसिस. तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, नैरेटिव एसेज नहीं लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले एक्ट एज कॉमेंटेटर्स टू द इवेंट्स दैट अनफोल्ड इन स्कॉटलैंड. अब आपको ये सारी चीज़ें जितने भी आपने एक्ट्स पढ़े थे 3, 3, 4, 5, उसमें आपको ये बताने जितने भी माइनर कैरेक्टर्स थे वो एज अ कॉमेंटेटर काम कर रहे हैं. स्कॉटलैंड के जो भी इवेंट हो रहे हैं स्कॉटलैंड में, उन सबको अनफोल्ड करने के लिए. तो आपको उन सारे माइनर कैरेक्टर्स को जो इवन लास्ट में भी थे उन सब के बारे में आपको बताना है. ठीक है, जितने भी सोल्जर्स और ऑल वर देयर, उन सब के बारे में भी आपको उसमें बताना है. Most candidates were unable to identify the minor characters and their choric roles in the play. Their answers lacked depth, were highlighted
enable to highlight the significance of the characters and the observations. देखो इसमें आंसर आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू कि किस किस की यहाँ पर बात हो रही है. जेंटल वुमेन, लेडी मैकबेथ के बारे में जो बता रही थी. डॉक्टर रॉस एक्ट्स एज अ मीडिएटर फॉर द ऑडियंस. येस. एक्ट 5 सीन 2 में लॉर्ड्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी. रिपोर्ट्स द गैदरिंग ऑफ मैकबेथ एंड मैकबेथ्स ग्रोइंग डेस्परेशन. मैकडफ इज डिसग्रेस विथ मैकबेथ्स ओवर. तो ये जितनी भी किंग एडवर्ड्स कोर्ट, तो ये जितनी भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स, छोटे छोटे इवेंट्स बताए थे, ये सारी चीज़ें आपको. मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन. ठीक. देन एक्ट 3 लेनॉक्स और लॉर्ड जो है इन सब के बारे में बता रहे थे. तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है बिकॉज मेन रोल वाज गिवन टू मैकडफ, मैकबेथ. ठीक. लेडी मैकबेथ. तो ये आपके मेन कैरेक्टर्स थे. ठीक है. लेकिन बाकी सारे जो थे उन सब के बारे में अगर वो उनकी स्पीचेस कहीं पे भी आई हैं, यू शुड मेंशन दोज स्पीचेस. ओके. देन नेक्स्ट वी विल मूव टू द प्रिज्म पार्ट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. अब इसे पूछा गया इंडिगो में भोला बाबू wants अनिरुद्ध अगेंस्ट अंडरटेकिंग अ सोलो कार जर्नी फ्रॉम कैलकाटा टू दुमका. Describe the consequences of Aniruddh's decision. You have to tell the obstacles he faced and what was the effect on him. तो इसका भी again we will be studying the analysis of this part. Okay, we will not हाँ. Most candidates clearly described the obstacles. इसमें इतना analytical नहीं पूछा गया था. However, they did not explain the effects of adequately. तो उन्होंने अच्छे खासे effects नहीं explain किए थे. Then next question, next statement उसमें है, एक मिनट. Referring closely to the short story, there will come soft trains. You have to describe any 4 routine activities that were performed by the automated devices, their description of any 4 and the significance of the activities. Okay, तो ये आपको छोटा छोटा describe करना था. Many candidates describe the activities but significance of the automated devices were confused or overlooked because students had not taken up that. फिर Why do Martin's friends appreciate his grandpa in the short story? रीज़न पूछा गया क्योंकि मार्टिन खुद बहुत घबराया हुआ था कि नहीं मैं उनको नहीं मिलवाऊंगा. How does peer pressure affect Martin's attitude towards grandpa? तो मतलब कैसे अगर peer pressure था तो उसके कारण कैसे his attitude was changed, ये आपको इसमें बताना था. Now the questions we will take. Most candidates could not answer this question, instead ended up writing the summary of the short story. No, never. Summaries I personally suggest you कि आप पोइट्री में उठा लो क्योंकि पोइट्री वो खुद ही इतनी एनालिटिकल होती है. आप उसकी समरी पढ़ोगे वो भी एनालिसिस के जैसे ही काम करती है. लेकिन शॉर्ट स्टोरीज में यू शुड नेवर टेक अप समरीज. Peer pressure or the change of Martin's attitude to the grandpa was not discussed in many cases. Reasons for Martin's friends to be in awe with grandpa were also not given. आपको ये बताना है कि why the friends had started appreciating grandpa, क्योंकि वो उनसे कभी मिले नहीं थे, जब मिले तो वो उनके फ़ैन हो गए थे. तो क्यों, reasons and how Martin's attitude changed. So ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी थी. Maybe after seeing this video आप जब दोबारा कभी भी उन चीज़ों को पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप खुद एनालाइज करने लगो कि हाँ काउंसिल कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस एज वेल. ओके. एंड इफ़ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आई वॉन्ट एटलीस्ट 1 कॉमेंट कि हाँ मैम मेरे इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए हैं. एंड इवन नॉट फुल देन एटलीस्ट आपके लिए तो वो मार्क्स सरप्राइज होने चाहिए ना कि इफ़ यू आर गेटिंग प्री बोर्ड्स में, इफ़ यू आर गेटिंग लाइक 70s में मार्क्स और 60s में, तो मे बी eventually 80 on 80 and finally 100 on 100, 95, 90, whatever. Surprising marks should be there for you also and it should be for me also. Now explore Tarapada's relationship with Annapurna and Charu Sashi in the short story Atithi. Why, in your opinion, does Tarapada leave Kathalya?
आंसर इन 200 to 250 वर्ड्स। तो पूछा गया है कि क्यों, रीज़न क्या था उसके छोड़ जाने का। तो मतलब आपको आंसर उसमें क्या बताना है। Many candidates did not provide balanced analysis while answering the question. Some candidates focused अन्नपूर्णा more than चारू शशि, vice versa। आपको दोनों के बारे में पूछा है तो दोनों के बारे में equal बताना है। Additionally, most candidates did not answer the second part of the question. They did not highlight or address की reason कि why तारापदा left the place suddenly, the manner in which it ties it with the character or nature. Just because कि he was a wanderlust person, इसलिए he left that particular place। तो वो reason आपको बताना है कि क्यों ऐसा था। ठीक है, next question, that is Rhapsody. Say now poetry questions comes. How does the poet depict the eternal nature of the river in the poem Small Towns and Rivers? You have to tell the journey of the river through land and the town and the poet's view of the river. So you have to tell about small towns and rivers. So the statement says that majority of the candidates could not respond to this question properly. Most responses were merely the summaries of the poem without addressing the question. आपसे उसमें पूछा गया अगर उसकी importance, so you are supposed to mention the importance of the poem, the journey and poet का view क्या था उसमें। ठीक है, द हाउ डज द पोएट डिपिक्ट द इटर्नल नेचर ऑफ द रिवर। तो ये जो उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर पूछी गई है ये आपको यहाँ पर मेंशन करनी थी। एंड पोएट का व्यू ऑफ द रिवर, तो दीज आर सपोज टू बी मेंशन्ड। पूरा नहीं लिखा करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब बीथोवन्स एफर्ट्स टू लिव अप फादर्स एक्सपेक्टेशंस। वो उसने क्या एफर्ट्स किए, उसके फादर के एक्सपेक्टेशंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बीथोवन टुवर्ड्स हिम। ठीक है, मोस्ट कैंडिडेट्स एंडेड अप राइटिंग समरी ऑफ द पोएम इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। नो, मतलब सी समरी यू प्रिपेयर, क्योंकि देखो मैं आपसे फिर वही चीज़ बोलूँगी कि इसमें आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस जो आपसे बहुत एनालिटिकल नहीं पूछे गए। बीथोवन के डायरेक्ट एफर्ट्स पूछे गए, उसको लिखो, बट अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपको उतना ही जवाब देना है। फैक्ट्स लाइक बीथोवन्स ऑब्सेशन फॉर परफेक्शन, हिज रिलेशनशिप विद साइलेंस, द ट्रायल्स सफर्ड बाय हिम वर नॉट मैंशनड। सेवरल फैक्चुअल एरर्स, जैसे सम कैंडिडेट्स रोट बीथोवन्स फादर्स बीटिंग्स टर्न्ड हिम डेफ। तो ये जो गलत चीज़ें बता दी गई हैं, मतलब इट हैपन्स कि पीपल चेंज द एंटायर स्टोरी ओनली। तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट शुड नॉट बी डन एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज दैट इज़ अ 10 marks question. The poem Telephone Conversation does not unite but separates two individuals engaged in the telephone conversation. This is a theme कि telephone is the medium through which two people unite, but यहाँ पर दो people को वो separate कर दे रही है। तो आपको उसका reference देना है कि textual references उसमें most candidates merely provided a bland summary. Instead of analyzing the statement, their answers lacked references to the specific lines or statements of the poem. ये तो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन ऐसी पोएम है कि आप उसको एज इट इज़ लर्न करके लिख सकते हो। ओके, तो उसमें से टेक्स्ट आपको उठाने हैं। फिर इसमें बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ है कि मोस्ट कैंडिडेट्स शेयर्ड वीक समरीज ऑफ द पोएम एंड विद नो फोकस ऑन ऑरोरा, कि मतलब उसका जो पार्ट था वो भी इसमें नहीं बताया गया था। Okay, with reference to the theme of immortality, analyze the portrayal of Eos Aurora in the poem Tithonus. तो आपको उसके बारे में बताना था कि मतलब उसका कैरेक्टर, उसका पोर्ट्रेट बताया गया ऑरोरा का। फिजिकल ऑल्सो यू कैन मेंशन, अपीयरेंस ऑल्सो यू कैन मेंशन, एंड उसका जो साइट था या उस का कह सकते हो कि मेंटल स्टेट। हमने टिथनस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन उसका भी हमें जानना था। तो दीज वर आस्क्ड हियर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सजेशंस नाउ वी विल बी डूइंग ऑल टुगेदर। लैंग्वेज के, लिटरेचर के जितने भी इस डॉक्यूमेंट पे सारे वी विल टेक एंड सी दीज आर द सजेशंस जो काउंसिल आपसे बोलता है कि ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और हम इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, दैट इज़ कुछ चीज़ें जो काउंसिल कहता है कि ये गलत, ये डिफ़िकल्ट थी,
जनरल कमेंट्स में मैल्कम्स किंगली क्वालिटीज़, मतलब इन चीज़ों पर फोकस करो. Choric role of minor characters of the play, change in Martin's attitude, Tarapada's nature, racism in telephone conversation, the theme, Beethoven's quest for perfection, small towns and river as an observation of life, the tragedy of Tithonus and Aurora. ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, एनालिटिकल हैं, बट आपको समझनी पड़ेंगी इवेंचुअली. देन कॉन्सेप्ट्स जिसमें पीपल वर कन्फ्यूज, द क्वालिटीज़ ऑफ किंग which could be traced between Malcolm and in the play Macbeth. तो Malcolm की kingly qualities, motivation of Macduff, why Macduff was so motivated, he was the strongest character at the end. ठीक है. Lady Macbeth's breakdown, very important, वो sleepwalking scene वाला, and eventually she dies also. Tarapada's attitude to life, identifying aspects on racism in telephone conversation. Okay, then eventually the suggestions we will take up at the end. जो काउंसिल आपको बोलता है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, these we will take up in the, मतलब इवेंचुअली हम लोग जब पेपर होगा तो उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे, and these things we can do. Okay, till then keep preparing, best wishes, and I hope this video is helpful to you. थोड़ा सा भी अगर आपको इसको हेल्प मिली हो, इससे थोड़ा समझ में हो कि हाँ आपको स्टोरीज पढ़नी है, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, तो कैसे पढ़नी है, वेयर यू आर सपोज टू मार्क द आंसर्स, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, टेक्स्ट रेफरेंसेस को याद करना है, उनको लिखना भी है समवेयर. तो दीज थिंग्स शुड बी फोकस्ड ऑन. कीप प्रिपेयरिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू.